Good morning, students. So today I'm going to start with the topic that is electron gain enthalpy. In the last video I have discussed with you that is a concept of ionization enthalpy. Then we have discussed the factors affecting ionization enthalpy. In addition to that, we have discussed a lot of questions that are based on ionization enthalpy. Now proceeding to the next topic, that is the electron gain enthalpy. As you can see, this is the third unit, okay, of the class 11, that is the classification of elements and periodicity in properties. So we have discussed what we have usually discussed, the types of enthalpies over there, okay. Like first of all we have discussed ionization enthalpy. Now I am going to discuss the next enthalpy. This could be very helpful when you will proceed for further units like S block, P block, D block, even F block. So even the part of inorganic, this is really helpful, okay. So please don't neglect this and you have to go thoroughly regarding these topics. So starting with the electron gain enthalpy, I will first of all, you already know enthalpy means, if I'll say enthalpy means energy, right? See the name, it would be clear from the name, electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी, ठीक है. नाउ आई विल टेक द एग्जाम्पल ओवर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल दैट it would be more clear to you. Here I have taken A as general symbol I have taken here, ठीक है. A that would be present in its gaseous state, okay. Electron is added to that, okay. Electron is added. Now you can see, when a element A is present, a electron is added to that, then it will be in the formation of A negative gaseous, right? Now what will be there? Two chances could be there. First chance, that this element has the ability to take the electron, means ये चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, ये स्टेबल नहीं है, it is incomplete, then it want to get stable. So if it is incomplete and want to get stable, then it has a chances to grab the electron. Grab means to gain the electron, right? In those cases, I am repeating, in those cases where the electron, the element has the chance to gain the electron, wants to gain the electron, I am repeating the sentence, want to gain the electron, then in those cases the electron gain enthalpy, okay, the electron gain enthalpy will be negative. That means if I'll say enthalpy, usually we represent with the symbol H. You will learn when you will go for a thermodynamics unit 6 of your class that we are denoting enthalpy with the symbol H, okay. So electron gain enthalpy, EG means I am talking electron gain enthalpy, that will be negative. Negative means when electron is added to A, electron added to A, it becomes stable, okay. As it needs one or two electron, as I have said that after gaining one electron it becomes stable. When it will become stable, it will release energy, because first of all it is unstable, it is wandering here and there. So when it will gain electron, then it will become stable. When it becomes stable, it will release energy, and that energy when released, energy बाहर निकल रही है. अब बाहर निकलेगी तो वो कैसे होगी, उससे बाहर निकली, सो इसीलिए we are representing that with the negative symbol. Clear? Now proceeding to the next part, another chance could be there, or another option could be there, that there is an element B, okay, that is present in gaseous form, and we are trying to add electron to that. Now what would be there? If it form B negative, in that case might be it is stable. So if I am saying that B, that is an element, it is stable, and we are adding electron to that, or electron is added to that, so in that case it form B negative. लेकिन ये जबरदस्ती का एडिशन हुआ इसमें, क्योंकि it is already stable, okay, it doesn't need any of the electron. Might be could be half filled, as we have discussed in the second unit, the half filled, fully filled, or the noble gases, they are very stable. So it is, if it is one of them, then if you are trying to add the electron to it, then what will happen? Might be
it will not form, most noble gases will not form, not gain the electron. Okay, but अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि तुमने ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन बी नेगेटिव. सो इन दोज केसेस you will provide energy, you provide energy with electron, you have to provide energy also. आपको खुद को एनर्जी, मतलब जो भी एलिमेंट, हम नहीं अपनी नहीं बात करेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट एलिमेंट हैज़ टू गिव एनर्जी. ओके, इफ एनर्जी दैट विल बी इवन एडेड टू दैट. अब वो स्टेबल था, अब उसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, देन इट विल बिकम अनस्टेबल. एनर्जी भी तो गेन की उसने इलेक्ट्रॉन के साथ. सो इन दैट केस डेल्टा एच ई जी वुड बी पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी. कुछ केसेस में ज़ीरो भी होती है, ठीक है, हम वो भी बात करेंगे. सो सबसे पहले अब डेफिनेशन की बात करें. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या समझ आया आपको यहाँ से, दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. ये एक तरह की एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, है ना, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट व्हेन electron is added to that element in its isolated gaseous state. It is present in gaseous state. ये एक तरह की एनर्जी है which is required by the element. ओके, उसके पास होगी, ठीक है, अगर तो वो अनस्टेबल है उसके पास होगी क्योंकि वो ग्रैब करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को. सो the type of energy which is required by the element when the electron is added to an isolated gaseous set. Okay, if it is unstable and after gaining electron becomes stable, then it will release that energy, वो बाहर निकालेगा उसको, and that will be negative. लेकिन if we have to provide, then it will be positive, and in some cases it could be zero also. We will discuss those questions also. Okay, उसमें भी zero क्यों होगी, because they doesn't have the tendency to accept or lose the electron. Okay, so this is about electron gain enthalpy. Before discussing the factors which will affect electron gain enthalpy, first of all I am going to discuss the definition with you people. Okay, so this is our lecture 4, so I am going to discuss a definition with you. So the definition here, electron gain enthalpy, the enthalpy change when electron is added to an isolated gaseous atom. Hope so it would be clear to you. I have discussed with you कि enthalpy change ही है ना बेटा. सो दिस इज़ एंथैल्पी चेंज, कि जब इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया किसी गैशियस एटम में तो उसमें जो एंथैल्पी रिक्वायर है एलिमेंट के लिए क्या चेंज आया, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव. सो दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, सो सी आई हैव रिटन नेक्स्ट लाइन, इट विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. इट विल बी एक्सो और एंडो. एक्सो जब वो बाहर आएगी, इट कुड बी एंडो. ये किस पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट पे डिपेंड करेगा. अब एलिमेंट कौन सा है, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ज़्यादा 118 एलिमेंट्स हैं, डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, इट विल वेरी. ओके, दैट कि वो नेगेटिव होगी, एक्सो होगी या एंडो होगी. ओके, सो डिपेंड अपॉन द एलिमेंट. सो आई विल डिस्कस एग्जाम्पल ओवर हेयर. Okay, I am discussing an example over here. So the example I'll take that is of हम बात कर लेते हैं ग्रुप 17. ग्रुप 17. अब ग्रुप 17 कौन सी फैमिली है, हैलोजन. Group 17 is a halogen family. So if it is a halogen family, you must know that it is having fluorine, chlorine, bromine and iodine. Chlorine, bromine, iodine. Okay, so fluorine, that is having outermost electronic configuration 2p5, chlorine 3p5, bromine 4p5 and iodine 5p5. ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देखिए. अब जब मैं बात करूँ फ्लोरीन की, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आपको पता है, मैं और डिटेल में आपको समझा देती हूँ यहाँ से ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. आपको पता है कि पी जो होता है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल. हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. अब मैं ये भी मैंने आपको तब बताया था कि ये जो होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी को पी एक्स लिखूँ, इसको पी वाई, पी जेड. ये भी हो सकता है कि पी एक्स ये हो, पी वाई ये, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी पे हैं. सो ये इक्वल एनर्जी पे होने के बाद ये आर स्टेबल.
So as any of the orbital can be filled, so we can say that in this case you can see these all are the halogen compounds. Okay, so you can see over here that in this case it require only one electron, as three orbital should gain, one orbital contain 2 electrons, so 3 will contain 6 electrons. So accordingly that p that will have 5 electron, it will gain one more electron, become 2p6, it will become stable. Same for 3p6, same for 4p6, 5p6. Okay, so it will happen here if it will gain one electron. So I can say that it has a maximum chances to gain the electron, because after gaining one electron, each of the element after gaining one electron has the tendency to become stable, to behave like noble gas, right? So based on that we can decide here that electron gain enthalpy, okay, the change of energy, that is negative here, because I have already discussed if any element needs electron then it will gain electron, after gaining electron will come negative, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ऐसे ही हर एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. जैसे कि आई मेक इट मोर एलेबोरेटिव इफ यू वांट, देन फ्लोरीन लाइक दिस इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन. When it will gain electron, as it is 2p5, after gaining electron it will become fluorine, that will be F negative with 2p6 electron in configuration, it will become stable. So as it will become stable, then definitely the electron gain enthalpy that will be negative here. Okay, so based on that we can say that these elements, the halogen family, is having the value of electron gain enthalpy that will be negative, so it will become negative. Okay, so proceeding to the next one, again it will become 3p6, 4p6, 5p6. I have discussed earlier also. So this will be the electron gain enthalpy having the negative value, but it is not in all cases. We will discuss one more question here that will be based on fluorine and chlorine. ओके, सो जब हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर हम ये भी कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम भी इम्पैक्ट करता है. तो जैसे आपको पता है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ओके, सो यू कैन सी हियर दैट डेफिनेटली हमने ये बात की है एटॉमिक साइज़ की, तो हमने बात की है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है ना. ये हम सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियोस. सो बेस्ड ऑन दैट हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है. जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी चांसेस जो होंगे एलिमेंट के टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ विल बी मोर. अगर उसके चांसेस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के ज़्यादा होंगे तो उसके गेन करने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे. सो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, और इसकी ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से. बट ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दैट बाय फ्लोरीन इज़ हैविंग लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स लेस नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन. होनी तो फ्लोरीन की चाहिए थी ज़्यादा क्लोरीन से, बट ऑपोजिट होती है. अब ये ऑपोजिट क्यों होती है वो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आई विल मेक इट क्लियर टू यू. जब हम इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. बट यहाँ पे सिर्फ मेरा ये बताने का ये पर्पज़ था इस एग्जांपल को कि भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव. ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, दैट कि एलिमेंट है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि वो स्टेबल हो रहा है कि वो अनस्टेबल हो रहा है. सो ये इसी पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, फर्दर. So first of all, as I'm discussing here, so I'll proceed further. So you can see I've discussed with you electron gain enthalpy will be exo and okay, after that I've discussed the example with you like this I've written. So मैंने already discuss कर ली है. The elements of group 70 need one electron only. So after gaining one electron element becomes stable, so electron gain enthalpy will be negative. I have discussed with you. Now see, I have written a question over here. Noble gases, they are having, I have put a question mark here to make you more attentive regarding this thing, that they are having positive electron gain enthalpy. जब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एलिमेंट स्टेबल है, अगर आपका एलिमेंट स्टेबल है तो उसके पास चांसेस हैं कि या तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, सो दो ही चांसेस हो सकते हैं, इधर इट कुड बी पॉजिटिव, इधर इट कुड बी नेगेटिव, और थर्ड चांस हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है.
सो अब मैं नोबल गैसेस के लिए आपको बात करती हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ नोबल गैसेस में। नियॉन की ही बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इट इज़ 1s2, 2s2, 2s2, after that there will be 2p6. We already know this is the electronic configuration of neon. If this is the electronic configuration of neon, then you can see here it is fully filled. Second shell जो हमारा है यहाँ पे 2 है, that means हमारा जो L shell है that contain how many electrons? 8 electrons. So 8 तो fulfill हो गए, है ना। सो अगर इफ़ यू वांट टू ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू दैट, अगर आप ऐड फिर भी करना चाहोगे तो डेफिनेटली एल में तो वो नहीं आएगा, वो अगर जाएगा भी तो वो एम में जाएगा। अब जब तुमने एम में उस इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करना है तो तब क्या होगा कि जब यू वांट टू ट्राई टू ऐड दैट इन द एम शेल, तो आपको बाहर से, मतलब आपको नहीं मैं कह रही, ये कह रही हूँ कि एलिमेंट को बाहर से एनर्जी, जो भी एलिमेंट डोनेट कर रहा है उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली ये स्टेबल था, अब इसको आप ज़बरदस्ती अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है सो ये एनर्जी गेन कर लेगा, ओके, और ये अनस्टेबल की तरफ मूव करेगा और इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर आई हैव डिस्कस विद यू दैट नोबल गैसेस आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर चार्ज, माइट बी इट वुड बी बेटर दैट इट विल बी क्लियर टू यू। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे इम्पैक्ट करता है? सो जब मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करती हूँ, जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रॉन्स पे और दूसरा एक तो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक डिपेंड करता है साइज़ ऑफ एटम पे, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, इलेक्ट्रॉन एंड साइज़ ऑफ एटम। अब आपको अगर हम इसी कंसेप्ट को इलेबोरेट करूँ मैं, जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो ये अगर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो हमें पता है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन साइज़ एटम का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नए शेल में ऐड हो रहे हैं। अब नए शेल में ऐड होंगे तो साइज़ ऑफ एटम डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट शेल पे, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, अब शेल बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है लेकिन इसका जो होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो रहा है, वो होल्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर तो कम होगा, टॉप टू बॉटम हम कह रहे हैं कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है, अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। हम ये अट्रैक्ट भी नहीं बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन, क्योंकि अट्रैक्ट जो है दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब वो गेन तभी करेगा अगर उसको अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, खींचेगा। सो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को, पुल है, वो ज़्यादा फील होगा। लेकिन अब अगर वही कम हो जाएगा, टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, जैसे इसमें है टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन साइज़ मैं कह रही हूँ, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन उसका बढ़ना जो है वो ये साइज़ ओवरकम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट टॉप टू बॉटम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है न्यूक्लियर चार्ज के साथ। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट नहीं उसमें रिलेट करना जब एलिमेंट आपका फुली फिल्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड है, या फिर टोटली नोबल गैस है, ठीक है। सो उन केसेस में तो हम न्यूक्लियर चार्ज की भी बात हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल है, वो तो गेन करेंगे नहीं। लेकिन ऑल दो अगर तुमने एलिमेंट को कंपेयर करना है, जैसे अगर तुमने इनको कंपेयर करना है तो न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब तो ये थी टॉप टू बॉटम की बात। अगर इसी की मैं लेफ़्ट टू राइट की बात करूँ, लेफ़्ट टू राइट, अब आपको पता है लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? एटॉमिक साइज़,
क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट जो हमने वीडियोस डिस्कस की थी। अब एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में। अब इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेफिनेटली अगर न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, न्यूक्लियर चार्ज। सो द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर दैट इज़ द साइज ऑफ एटम, वो भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ एटम, हम कर चुके हैं इसकी बात भी कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, साइज ऑफ एटम क्लियर होगा आपको, मोर एटॉमिक साइज, ठीक है, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। सो साइज ऑफ एटम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है। सो मेरा थर्ड जो होगा पॉइंट, जो फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इम्पैक्ट करता है, वो हम थर्ड फैक्टर जो बात करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपके साथ बात करूँगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो आई हैव डिस्कस विद यू दैट इफ़ द एलिमेंट इज़ हैविंग हाफ फिल्ड, प्लीज़ नोट डाउन, हाफ फिल्ड, fully filled, okay, add noble gases, matters, ठीक है, it matters, why, because आपको पता है, मैंने ये चीज़ बता चुकी हूँ। बिकॉज इन एलिमेंट्स में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि जो अगर हम हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या नोबल गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि दे हैव ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। अगर आप उसमें ट्राई आप करोगे ऐड करने का इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली या तो वो पॉजिटिव शो करेगा या फिर वो ज़ीरो शो करेगा। जैसे कि हमारा है नोबल गैसेस में इट विल शो पॉजिटिव। कुछ हम एलिमेंट की बात करेंगे जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम में आगे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं तो वहाँ पे हम और इलेबोरेट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। नेक्स्ट है वेरिएशन इन अ ग्रुप। अब आप, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। वेरिएशन इन अ ग्रुप कैसे होगा, आपको पता है एटॉमिक साइज़ जो है वो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं एटॉमिक साइज़ होता है इंक्रीज़। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एटॉमिक साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो वही चीज़ आ गई यहाँ पे जब हम बात करें। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ग्रुप में होगी, गेन एंथैल्पी इन ग्रुप क्या कह सकते हो आप, क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स कम होगी। नेक्स्ट वन, व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएशन इन पीरियड, सेम कंसेप्ट साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। अब साइज ऑफ एटम पीरियड वाइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये हमारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सो इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई रिटन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस हियर। व्हाई हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सी, I've discussed with you people that why halogens having the highest electron gain enthalpy. If I'll say fluorine, chlorine, bromine, iodine, this is the first question I'm discussing here. So you can see here 2p5, 3p5, 4p5, 5p5. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। 2p6, 3p6, 4p6 और 5p6।
ऐसा ही कुछ होगा। इसीलिए क्या है, इनकी जो वैल्यू है हाईएस्ट नेगेटिव मीन्स क्योंकि पहले वो अनस्टेबल है, वो चाहता है कि कोई एलिमेंट आए, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सो वो स्टेबल कर ले अपने आप को नोबल गैसेस की तरह, इट विल स्टार्ट बिहेविंग। सो फॉर दैट इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको कब मिलेगा, जब इसको कोई एलिमेंट देगा, तो जब वो मिलेगा वो अपने आप को स्टेबल फील करेगा, तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको रिलीज करेगा एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। अब देखो नोबल गैसेस आर पॉजिटिव, I have discussed already with you. Electron gain enthalpy and beryllium, magnesium, nitrogen, phosphorus is almost zero. ये हम कर चुके हैं डिस्कस नोबल गैसेस। अब ये कर लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, व्हाई दे हैव ज़ीरो। सो जब हम बात करते हैं ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नोबल गैसेस अब ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं आगे बात करती हूँ। बेरिलियम होता है हमारे पास, इट इज़ हैविंग अ एटॉमिक नंबर दैट इज़ 4, दैट इज़ 1s2 2s2। फुली फिल्ड है, ठीक है, फुली फिल्ड है। हाँ, इसके पास 2p खाली पड़ा होगा, लेकिन अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करूँ तो भरा हुआ है, ये स्टेबल है, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट है हमारा पास मैग्नीशियम, ठीक है, 12, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या है, फुली फिल्ड है, ठीक है। अब ये तो फुली फिल्ड है हमारे पास। अब मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन विल बी 7, इट विल बी 1s2 2s2 2p3 3। तो आपको पता है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर एक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड है ये। अब बात करूँ अगर मैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस इसी का मेंबर है, तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे भी देखिए ये क्या आ गया, हाफ फिल्ड आ गया। सो इसीलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर स्टेबल फुली हाफ, यही तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डिस्कस किया। ड्यू टू हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस दे हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे डोंट वांट टू गेन एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो नोबल गैसेस है उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं, तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो वो पहली तो बात तो नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। एक जिनोन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सम ऑफ द रिएक्शंस दी हैं उसने फ्लोरीन वगैरह या क्लोरीन के साथ, रेस्ट कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बट फिर भी इफ़ इट विल बी देयर देन इट विल शो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, ये देखिए अब आ गया ना आपका क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। अभी मैंने आपसे जब बात की, हमने बात की, यहाँ पे देखिए जब मैंने बात की वेरिएशन इन अ ग्रुप, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी ग्रुप में वो डिक्रीज़ होगी, वो कम होगी, ठीक है, घटती जाएगी। जब आप टॉप टू बॉटम बात जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नो डाउट कि नेगेटिव होगी, ठीक है, लेकिन वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो साइज़ पे भी तो डिपेंड करती है कि साइज़ अब क्या है, बढ़ रहा है। जब साइज़ बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, सो टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव की तरफ मूव करती जाएगी। बट कहते होता क्या है, होनी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की चाहिए थी, बट अनएक्सपेक्टेडली इट इज़ हैविंग हाई। सो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रीज़न है बेटा। सो द रीज़न बिहाइंड दैट, आपने इसमें जो बात करेंगे हम, द रीज़न विल बी देयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है। अब ये आपने इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ रिलेट नहीं करना, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ डिफरेंट। स्क्रीनिंग में क्या होता है, द इनर इलेक्ट्रॉन दे विल रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी वैसा कुछ रिपल्शन है, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर चार्ज की बात भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो है कहते क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाती है एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो साइज़ में छोटा है, ठीक है। उस फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट आ जाता है कि वो अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। वो पहले ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक, देखिए अब उसका साइज स्मॉल है, दैट्स वाई इट विल फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। उसमें इलेक्ट्रॉन में इंटर मीन्स
इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस होंगी, ठीक है, डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन में। तो जिसकी जबकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, सो इट विल नॉट फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, होंगी भी तो कम होंगी किससे, फ्लोरीन से। तो इसीलिए कहते हैं क्या है, इसके जो चांसेस है टू गेन द इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे। होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल फिनिश हो गया है यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।